Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Turkan-e Chihelgani. So, it's an institution and it was created by the Iltutmish. So, this institution played a great significance in the history of Delhi Sultanate. After Qutbuddin Aibak's death, Sultan Iltutmish became the emperor of Delhi Sultanate. And he made Delhi as his capital or the seat of power. So जब वो emperor बने, he used to face n number of challenges. And these challenges are both internal, वो internal challenges भी थे. At the same time, some external challenges was also there. External challenges in the sense that they used to protect their territory from the foreign invaders. और उसमें जो prominent थे Mongols, another one is Genghis Khan. So ये दो challenges काफ़ी prominent थे during the time of Iltutmish along with the internal challenges. So in order to tackle all these challenges, Sultan Iltutmish carried out several reforms. And in line with these reforms, creation of Turkan-e-Chihelgani institution was the reflection of the same. Now let's see in detail about the Turkan-e-Chihelgani. कुछ उसके important elements हैं. First is Turkan-e-Chihelgani was also known as the Corps of 40. Now this Corps of 40 was an elite corps. It is the best among the best. Loyalist जो लोग थे उनको इसमें recruit किया जाता था. That is, और Sultan himself recruited him. Due to which they very proud of themselves. Okay, वो अपने आप को बहुत proud करते थे. Now, so अच्छा ये जो Corps of 40 है, it doesn't always means 40 in the number. As per the historian Ziauddin Burni, these are the slave officers. ये जो slave officers थे are the Corps of 40. Chihelgani, this number does not matter because we identify even less than 25 such person in the list of Iltutmish nobles. Although ये जो institution हुआ था इसका नाम था Corps of 40, but ये एज पर द ज़ियाउद्दीन बर्नी हमेशा नहीं होता था कि ये जो इनकी जो मीन्स नंबर है ये ऑलवेज 40 हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द एम्परर. और जो भी नीड होती थी उसके हिसाब से इनको अपॉइंट किया जाता था. तो इट वॉज नॉट ऑलवेज 40 एज पर द हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बर्नी. नाउ अनदर इज these 40 enjoyed the elite status. Elite status तो था ही इनका. At the same time, they will also enjoy the certain other privileges. Okay, ये certain other privileges भी enjoy करते थे. But इसमें एक problem थी. इस जो institution था, it was suffer internal bickering. उसमें इंटरनल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. दैट इज देयर इज नो कॉपरेशन अमंग दैम. उनके अंदर कॉपरेशन नहीं था और इंटरनल बिकरिंग थी. दैट इज दे डोंट लाइक ईच अदर और दे यूज टू बेसिकली असर्ट देयर पावर और वो अपने आप को सुपीरियर करना चाहते थे एक दूसरे से. सो दिस इंस्टीट्यूशन फेसेस द इंटरनल बिकरिंग. सो इट वॉज एज एन चैलेंज. और ये इल्तुतमिश के टाइम से जब इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ था तभी से था. ओके, नाउ लेट्स सी द तुर्कान-ए-चिहलगानी. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इल्तुतमिश. और ये इल्तुतमिश ने क्यों किया था हमने देखा था. देयर आर द वेरियस चैलेंजेस. सो in order to tackle the challenges at the same times to provide an empire and solid administrative mechanism for the सल्तनत. सो इसमें जो होता था द एबलेस्ट जो भी एबल थे एबलेस्ट ऑफ द स्लेव ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय द इल्तुतमिश. ठीक है. एंड ये जो होते थे जो स्लेव ऑफिसर्स होते थे दे आर डायरेक्टली लॉयल टू हिम. दैट इज द लॉयल टू इल्तुतमिश as for their various administrative responsibilities.
Okay. Now, during the reign of Iltutmish, Turkan Chihalgani contributed immensely. This institution contribution is immense because first of all, its help in the strengthening of the foundations of the Sultanate, strengthening of the Sultanate. At the same time, they help in running डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. सो दे ऑल्सो कैरीड आउट द मिलिट्री कैंपेन. At the same time, they also carried out territorial expansion. So these are all the things, or basically it's a duty of Turkan-e-Chihalgani institution. So क्या हुआ? After the death of Iltutmish, these members of Turkan-e-Chihalgani became highly ambitious. So after the death of Iltutmish के बाद क्या हुआ? These जो members थे Turkan-e-Chihalgani, ये highly ambitious हो गए. एंड इनडिसिप्लिन्ड हो गए. नाउ इंस्टेड, अब क्या करने लगे? इंस्टेड ऑफ सर्विंग द स्टेट एज ए लॉयल ऑफिसर्स, दीज तुर्कान-ए-चिहलगानी assumed the role of kingmakers. That is the kingmakers in the sense that they always try to support the weak contenders. वो हमेशा weak contender को support करते थे to the throne, so that जो main power थी वो concentrate रहे इनके hand में. ठीक है, जो नाम के लिए ruler हो जाए, लेकिन जो back end power, जो main power रहे इनके hand में रहे. Okay. अच्छा, now this corps of 40, and they not behaved as an unified body. सो ये एक यूनिफाइड बॉडी नहीं थी. दैट इज दे यूज टू वर्क इन कॉपरेशन. वो ऐसा नहीं था, एक यूनिफाइड बॉडी नहीं थी. इंस्टेड, एज पर द बर्नी, none of them would vow or submit to another, and in the distribution of territories, जब distribution of territories होती थी, इक्तास such as इक्तास, और उनको फोर्सेस की कमांड दी जाती थी, और कोई एक इंडिविजुअल ऑफिस दिया जाता था, और कोई ऑनर दिया जाता था. सो दे यूज टू सॉर्ट इक्वालिटी विद ईच अदर. ओके, सो एज पर द बर्नी, इट वॉज नॉट एन यूनिफाइड बॉडी एंड इट्स अ काइंड ऑफ सेपरेट बॉडी. ओके. अच्छा, ये जो है, इंस्टेड ऑफ सर्विंग द स्टेट एज ए लॉयल ऑफिसर्स, ये जो अब लॉयल ऑफिसर्स नहीं रहे. नाउ ये जो तुर्कान-ए-चिहलगानी, दे एज्यूम द रोल ऑफ द किंग मेकर्स. इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश क्या हुआ? ये जो कॉप्स ऑफ 40 थे, दे ट्राई टू असर्ट देयर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द एम्परर, दैट इज द इल्तुतमिश. बट जो सुल्तान था, ही यूज्ड टू नॉट सरेंडर. उन्होंने अपनी पावर सरेंडर नहीं की थी. हिज रॉयल, ही यूज्ड टू मेंटेन हिज रॉयल प्रिविलेज टू अपॉइंट अ पर्सन, ठीक है, फॉर द अदर ग्रुप्स एज द ऑफिसर्स. ठीक है, ये क्यों किया था? टू मेंटेन द बैलेंस. और ये बैलेंस तब ब्रोक हो गया आफ्टर द इल्तुतमिश डेथ. Now let's see how this institution evolved with the passage of time. So after Iltutmish, the Rukuddin Firoz Shah, 1236, he was placed on the throne with the help of the Turkan-e-Chihalgani. उन्होंने इसको बैठाया. In spite of the fact that Iltutmish wanted his daughter Razia to succeed him, उन्होंने उसको नहीं बैठने दिया रजिया को. It is because not Razia, nobles not approve the Razia succession because she tried to organize non-Turkish. So वो क्या कर रही थी? non-Turkish ग्रुप को लाना चाह रही थी एज अ काउंटर वेट, काउंटर करने के लिए कॉप्स ऑफ 40 को. बिकॉज आफ्टर इल्तुतमिश ये उनको कंट्रोल, कॉप्स ऑफ 40 कंट्रोल में नहीं था. अब वो लॉयल नहीं रह गया था अपने सुल्तान को. दैट इज द वाई जो सुल्तान रजिया थी, जो बनना चाहिए था एज पर द इल्तुतमिश, वो एज ए नॉन टर्किश ग्रुप चाहती थी एज ए काउंटर वेट टू, दैट इज द तुर्कान-ए-चिहलगानी और द कॉप्स ऑफ 40.
ओके एंड यही वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई द नोबल सपोर्ट हर ब्रदर बिकॉज रुकुद्दीन अहमद तो एज ए पपेट गवर्नमेंट की तरह उसको एज ए पपेट रूलर की तरह उसको प्लेस किया गया थ्रोन में। अच्छा वन मोर थिंग, ये जो कॉप्स ऑफ 40 थे ये नेवर यूनाइट इन वन आइडिया, वो कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते थे, नहीं होते थे बेसिकली, इट्स अ फैक्ट। बट सिर्फ एक चीज पे होते थे कि कोई भी नॉन टर्किश पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए इन द 40 में, और रजिया यही करना चाह रही थी। दैट इज द वाई ही यूज टू basically the Turkan Chihalgani or the corpse of 40 placed his brother on the throne. Now when Razia captured the power with the help of the people of Delhi, this member of Turkan Chihalgani later accepted as a sultan. बस उन्होंने क्या सोचा with the hope that she will never she will remain away, वो हमेशा that she will remain away from day to day affairs from the state. But अब क्या हुआ when Razia started behaving like a rulers both in the name and in fact, ठीक है, अब वो सिर्फ उस नाम के लिए नहीं, it doesn't matter she is a woman, she used to take the administration in their hand and perform their function very efficiently. तभी उनको ये खटक गया, दैट इज द वाई कि उनकी पावर जा रही है, दैट इज द तुर्कान चिहलगानी. So he started, then the institution of Turkan Chihalgani started conspiring against her and she was defeated, disposed and killed. It is जो conspiracy थी of the Turkan Chihalgani. We will discuss each and everything in detail when we discuss Razia in detail, ठीक है, जो पढ़ेंगे. But now we will strictly focus on Turkan Chihalgani. Now again अब क्या होता, मोइनुद्दीन बहरेन, ठीक है, सो ही यूज्ड टू प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय द तुर्कान चिहलगानी आफ्टर रजिया एंड व्हेन ही डाइड अलाउद्दीन मशीद शाह 1142 to 46 was raised to power. Now but after the death of Mashud Shah, Kishlu Khan, he was not belongs to royal family but he is a member, he is one of the member of the group of 40, that is the corpse of 40. Now when he tried to capture power but he had to abandon the plan when other members of the Turkan Chihalgani opposed him. Now देखो अब अगर इनको कोई यूनिफाइड अगर एक तरीके से एक्ट करते तो ये डेफिनेटली रूलर बन जाता, बट व्हाट विल हैपन, दे यूज टू एक्ट डिफरेंटली और सेपरेटली, वो अपना अलग अलग अपने आप को पावर लेना चाहते थे. दैट इज द वाई कोई भी एक मेंबर उनमें से, दैट इज किशलू खान, ही यूज्ड टू बिकेम और ट्राई टू कैप्चर द पावर बट इट वाज अपोज्ड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ तुर्कान चिहलगानी. नाउ नसीरुद्दीन मोहम्मद. So during the reign of the Sultan Nasiruddin Muhammad Balban, now here the picture changes. Now the Balban emerged as a real power behind the throne. Balban was also a member of corpse of 40. Now it's a potential fact, might be possible directly asked in examination. So he was also a member of a group of 40. Now he was appointed as a नायब. तो उसको नसीरुद्दीन महमूद ने कैसे अपॉइंट किया था, एज ए नायब. और नायब कौन होते थे, एज ए डेप्यूटी सुल्तान, इट्स एन इंपॉर्टेंट पोस्ट. तो उसको डेप्यूटी सुल्तान उसको अपॉइंट किया गया बाय द नसीरुद्दीन मोहम्मद. सो बाय दिस टाइम अब क्या हो गया था, अब उनको पता था दैट इज द कॉर्प्स ऑफ 40 एज ए इंस्टीट्यूशन को कि हम इंडिविजुअली पावर नहीं कर सकते बिकॉज कोई ना कोई हमें मीन्स नहीं करने देगा, क्योंकि इंटरनल बिकरिंग बहुत थी. दैट इज वाई ही ट्राई टू मेक ग्रुप. अब वो ग्रुप बना के एक्ट करने लगे कि कुछ ग्रुप में 10 से 5-6 मेंबर्स हो गए, 7-8 मेंबर्स हो गए. तो इस तरीके से ग्रुप एमर्ज हो गया इन तुर्कान चिहलगानी. और अब उनका क्या मोटिव रहता था, एम रहता था, सो दैट एवरी ग्रुप वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज डोमिनेंस ओवर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. वो इंडिविजुअल तो नहीं कर पाए, अब वो ग्रुप बना के, दैट इज द ग्रुप बन गया. सो अब वो ग्रुप बना के अपनी पावर असर्ट करना चाहते थे और जो मेन पावर थी अपने हैंड में लेना चाहते थे. ओके, नाउ राइज ऑफ बलबन. सो अब यही रीजन था. नाउ राइज ऑफ बलबन वाज अपोज्ड बाय अनदर ग्रुप. नाउ बलबन क्या था, इनका एक ग्रुप था, ठीक है, अब ये पावर में आ गए. सो इनको अपोज किया गया अनदर ग्रुप और दैट वाज लेड बाय इमाद उद्दीन रेहान.
सो और ये जो ग्रुप था ये अपोज कर रहा था, एट द सेम टाइम्स ये सक्सीड भी हो गए थे रिप्लेस करने को, रिप्लेस कर भी दिया था इन्होंने बलबन को एज ए नायब। अब इमादुद्दीन रेहान नायब बन गए थे, बट फॉर द सम टाइम, बिकॉज when Rehan failed in running the affairs of the state effectively, Balban regained his office. Okay, now this time when Balban captured the throne, अब क्या हुआ, Balban captured the throne and sat on the throne after the death of Nasiruddin Mahmud. अब नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई, and due to which the real power, that is the Balban, कैप्चर द क्राउन, अब उन्होंने क्राउन को कैप्चर कर लिया। लुक, ही वॉज, बलबन वॉज द मेंबर ऑफ कॉप्स ऑफ 40। नो, ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द डीजेनरेटेड कैरेक्टर, डीजेनरेटेड कैरेक्टर ऑफ तुर्कान चिहलगानी, ड्यू टू विच ही स्टार्ट क्रशिंग दिस इंस्टीट्यूशन। दैट इज, उसको पता था क्या क्या डीजेनरेशन है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ये ऑब्वियसली ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द तुर्कान चिहलगानी, उसको इंटरनल सब पता है क्या क्या चीज़ हो रही है तुर्कान चिहलगानी का, क्या ग्रुपिज्म है, और ये स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है ना। अब उसको वो कैप्चर पावर तो उसने कैप्चर कर ली, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अवेयर दैट ये जो ग्रुपिज्म है वो कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट में नहीं है। दैट इज वाई ही स्टार्ट क्रशिंग दिस इंस्टीट्यूशन, and by using the policy of blood and iron. Now it's an important policy of Balban. We will discuss in detail each and every aspect about that blood and iron. So अब वो with the help of this blood and iron policy, अब वो उसने क्रशिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो अब क्या हुआ, जो मोस्ट पावरफुल मेंबर्स थे, दैट इज तुर्कान चिहलगानी, आइदर उनको पॉइजन दे दिया गया, दे पॉइज टू डेथ, सम ऑफ देम वर डिसमिस्ड, कुछ को डिसमिस कर दिया गया ऑन द ग्राउंड दैट दे आर ओल्ड एज, अब वो अपना जो फंक्शन है वो इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सम ऑफ देम आर रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनएफिशिएंसी, यू आर नॉट इनएफिशिएंट एंड इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, तो अब आप जाएं, घर बैठे आराम करें। ओके, एट द सेम टाइम्स अदर्स वर टेरिफाइड, जो भी बचे कुचे, थोड़े बहुत बचे कुचे, दे वर टेरिफाइड इनटू सबमिशन, जब तक उन्होंने अपनी एम्बिशन सब छोड़ नहीं दी। अब ये कैसे किया उन्होंने, बाई स्टार्टेड गिविंग वेरी टफ और बेसिकली द एक्सप्लॉयटेटिव पनिशमेंट, छोटे से छोटी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या कोई भी उनसे गलती हो जाती थी, द बलबन यूज्ड टू गिव टफ पनिशमेंट इवन फॉर द माइनर ऑफेंसेस। तो भाई साहब वो लोग इतना डर गए हैं कि दे स्टार्ट, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के सबमिशन कर दिया कि सर जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स टेकन बाय द बलबन, तुर्कान चिहलगानी सीज, ये सारे स्टेप्स लीड्स टू तुर्कान चिहलगानी इंस्टीट्यूशंस cease to exist, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, cease to exist, and it was no longer a threat to the power। अब वो जब इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, so it was not, अब वो स्टेट के लिए it was not, no longer, अब वो थ्रेट रहा ही नहीं to the power and the prestige of the crown, prestige of the crown. This is all about the Turkani Chihalgani. It's an important institution because it doesn't matter, there are some internal differences as well, there are challenges as well, but these institutions served the Delhi Sultanate very well, although there are some challenges because we will see these challenges, but काफ़ी important institution था and it places a great significance in the history of the Delhi Sultanate. Now let's see one questions regarding the same. Question: consider the following statement regarding the corps of 40 or the Turkani Chihalgani. So first statement says that this institution was created by Balban. Second statement says that after death of Iltutmish, corps of 40 assumed the role of kingmakers. So first statement says that this institution was created by Balban. No, this institution was created by
Iltutmish originally in order to prepare the solid social background, administrative background for the Delhi Sultanate. So first statement is wrong, second statement is true. So the correct answer will be B. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this.